Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 11th unit 5th system of particles and rotational motion. This article is radius of gyration. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये आपके बेसिकली 4 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the article? The article is on my back screen. The article is radius of gyration. बड़ा ही important article है, ध्यान से देखेंगे. Now what is the meaning of that radius of gyration? The radius of gyration of a given body is defined as the perpendicular distance of a point P from the axis of rotation, where if the whole mass of the body were supposed to be concentrated and the body shall have the same moment of inertia as it with the actual distribution of mass, and it is to be represented by K. मैं यहाँ पे अभी स्टेटमेंट को राइट डाउन कर रहा हूँ और यही स्टेटमेंट आपको फाइनल में अगर आता है तो लिख के आनी है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद दोबारा इस पे हम फोकस करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन के स्टेटमेंट पे। द रेडियस ऑफ जायरेशन, द रेडियस ऑफ gyration of a body about a given axis, given fixed axis, is defined as the को रहने दे, is the perpendicular distance of the point P from the axis of rotation, where if the whole mass of the body were supposed to be concentrated, and the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass, it is represented by K. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और 4 मार्क्स का ये आर्टिकल आपके फाइनल एग्जाम में आता है। द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन फिक्स्ड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेयर इफ द होल मास ऑफ द बॉडी वर सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड and the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of mass, and it is to be denoted by K. वो हमें क्या कह रहा है? Suppose this is the axis of rotation, and the rigid body is to be rotating about this z axis with some angular velocity say omega. मैंने यहां पर क्या ले रहा हूं? एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूं, से z एक्सिस ले रहा हूं, और एक रिजिड बॉडी ले रहा हूं, दिस इज द रिजिड बॉडी, एंड दिस रिजिड बॉडी मैं मान लेता हूं कि n पार्टिकल से मिलके बनी है, बट ईच ऑफ हैविंग द मास इज से m. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास है m, एंड इट्स डिस्टेंस
from the axis of rotation is say r1. This is the second particle having the mass is again m, and the distance from the axis of rotation is say r2. And this is the third particle having the mass is say m, and the distance from the axis of rotation is say r3. ऐसे ऐसे इसके अंदर n particles है. अब radius of gyration basically है क्या? Suppose this is the axis of rotation, ध्यान से समझेंगे डेफिनेशन को. This is the axis of rotation, say z axis, से z एक्सिस, जिसके अराउंड में मेरी ये बॉडी जो है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है. अब जब रिवॉल्व कर रही है तो इस बॉडी का पूरा मास कहीं ना कहीं कंसंट्रेट जरूर होगा. सपोज दिस इज द पॉइंट P वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड. अब इस पॉइंट P का यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जिसको मैं K से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन. दोबारा समझे रेडियस ऑफ जायरेशन को. ये हमारे पास एक फिक्स्ड जेड एक्सिस है जिसके चारों ओर बॉडी जो है ऐसे रिवॉल्व कर रही है एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से. अब इस बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? मैंने n पार्टिकल मान लिए और हर पार्टिकल का मास क्या है? सेम. ईच पार्टिकल हैविंग द सेम मास m. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास था m, इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है से r1. This is the second particle having the mass is m, and the distance from the axis of rotation is say r2. This is the third particle having the mass is say m, and the distance from the axis of rotation is say r3. तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? अब इस पूरी बॉडी का मास कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट होगा. सपोज दिस इज द पॉइंट P वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. तो इस पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम K से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ gyration. We have to calculate the value of K. This is the definition. अब हमें K की वैल्यू को निकालनी है. तो अब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं, एंड ईच पार्टिकल हैविंग द मास इज सेम. अब और उसका जो डिस्टेंसेस है वो आपके सामने गिवन है. फर्स्ट पार्टिकल का r1, सेकंड का r2, थर्ड का r3. मैं कहता हूं n पार्टिकल है. अब जब बॉडी रिवॉल्व कर रही है अबाउट ए गिवन एक्सिस, तो इसका मतलब उसके अंदर बैठा हुआ हर एक कांस्टेंट पार्टिकल भी रिवॉल्व कर रहा है अबाउट ए गिवन एक्सिस. इट मींस हर पार्टिकल एक ना एक इनर्शिया को प्रोसेस कर रहा है, बिकॉज इनर्शिया इज ए क्वांटिटी विच कनेक्टेड विद द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी. तो अगर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो मैं कहता हूं इसका इनर्शिया है से I1. अब इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी या पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे I1. फर्स्ट पार्टिकल का मास है हमारे पास m1. नाउ स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ व्हाट इज m1? दैट इज m. इसी तरह अगर मैं सेकंड पार्टिकल की बात करूं I2 की, तो दिस इज m इंटू R2 का स्क्वायर. अगर मैं थर्ड पार्टिकल की बात करूं I3 की, दैट इज m इंटू R3 का स्क्वायर. इसी तरह अगर मैं nth पार्टिकल की बात करूं तो इट इज m इंटू Rn का स्क्वायर. तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं ऑफ द रोटेशन, दैट इज द सम ऑफ द इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल डैश डैश n पार्टिकल. तो I इज इक्वल टू I1 कितना हो गया? m इंटू R1 का स्क्वायर, m इंटू R2 का स्क्वायर डैश डैश m इंटू Rn का स्क्वायर. तो I कॉमन ले लेते हैं. दिस इज m R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर. नाउ ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो m इंटू n, दिस इज R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. नाउ व्हाट इज n? दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नाउ व्हाट इज स्मॉल m? दैट इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल. अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं मास ऑफ ईच पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आउटकम आएगी? टोटल मास ऑफ द सिस्टम और ए बॉडी. इट मीन्स दिस इज m एंड दिस इज R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर बाय m, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी. m क्या है? कैपिटल m, यहां पे टोटल मास ऑफ द बॉडी. ये कैसे आया? स्मॉल m है मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी और n है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को
मैं उनके पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास ऑफ द बॉडी आ जाएगा, क्योंकि वो पार्टिकल से मिलके बनी है। तो m इज इक्वल टू m इंटू n। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है I इज इक्वल टू m r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर rn का स्क्वायर बाय n। नाउ this is the point P where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. It means अगर मैं moment of inertia of this particle की बात करूं से I dash, तो it comes out to be mass of the particle. The total mass of this point P is the whole mass of the body is supposed to be concentrated, that is m, and the distance का square that is k square. This is equation number 2. अब you know that as per definition अगर हम बात करें, and the body shall have the same moment of inertia, means I की बात कर रहे हैं, as it has with the actual distribution of mass. तो इसका मतलब this is the moment of inertia of the body and this is the moment of inertia of actual distribution of mass, तो both will same. It means I is equal to I dash. If I is equal to I dash, it means k square is equal to r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर rn का स्क्वायर बाय n. अगर इन दोनों को कंपेयर करें I इज इक्वल टू आई डैश को, तो m से m कट जाएगा, तो k स्क्वायर इज कम्स आउट टू बी दिस. इट मीन्स k कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ दी r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर rn का स्क्वायर बाय n. सो दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको हमने k से डिनोट किया है. तो रेडियस ऑफ जायरेशन की अब डेफिनेशन देख लेते हैं, यहां से जो निकल के आ रही है. इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दी mean of the square of the distance of the particle from the axis of rotation. क्या बताया? The radius of gyration को हम k से डिनोट करते हैं, and it is defined as the square root of, this is the square root of mean of the square of the distance of particle from the axis of rotation. दोबारा देखिए definition. This is the radius of gyration, it is to be denoted by k. It is the square root of the mean of the square of the distance of particle from the axis of rotation. So this is the article. बड़ा ही important article था, और पेपर में जो इस तरह के articles हैं ये 4 मार्क्स के आपके फाइनल में पूछ लिए जाते हैं. 101% इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. इसका पिछला वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, अगर एग्जामिनर 2 सेट दे रहा है तो एक सेट में 101% काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात करेगा, जिसका वीडियो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, और सेकंड में रेडियस ऑफ जायरेशन की वो बात आपसे कर सकता है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका वीडियो बनाया, और जल्दी इस वीडियो को मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप तक शेयर भी हो जाएगा, और आप इस वीडियो को देख के अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं. एंड इफ़ इट विल आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन योर फाइनल एग्जाम, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे. सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी.